دیور تو بھائیوں کی جگہ ہوتے ہیں، لیکن میں نے نہیں سوچا تھا کہ میرا دیور میرے ساتھ ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ میرا نام شازیہ راجپوت ہے۔ میں لاہور کی رہنے والی ہوں۔ میری عمر 30 سال ہے۔ میری شادی ہوئے 6 سال ہو گئے ہیں اور میرے 2 بچے بھی ہیں۔ ایک بیٹا علی 4 سال کا ہے اور بیٹی دعا 2 سال کی ہے، جو ابھی ابھی میرا دودھ پیتی ہے۔ میرا رنگ نارمل ہے اور میرا جسم چوڑائی میں بہت بڑا ہے، مگر شادی کے بعد میرا جسم اور بھی نکھر گیا۔ شادی سے پہلے میرا ایک بوائے فرینڈ ثاقب تھا، اس کے بعد تو صرف شوہر جواد ہی ہیں، جس سے میں بہت زیادہ پیار کرتی ہوں، لیکن ابھی میرے شوہر مجھے بہت زیادہ ٹائم نہیں ملتا۔ شاید یہ بات زیادہ تر عورتوں کے ساتھ ہوتی ہے کہ شادی کے کس ٹائم تک شوہر اپنی بیوی کو بہت زیادہ وقت دیتے ہیں، مگر جہاں 2 بچے پیدا ہوئے تو میرے شوہر مجھے اتنا زیادہ ٹائم نہیں دیتے ہیں۔ تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ ہماری فیملی میں صرف میں اور میرے شوہر جواد ہیں۔ جواد کے بڑے بھائی سلیم اور بھابھی ریما ہیں، وہ بھی الگ ہی رہتے ہیں، اسی لیے ہم لوگ بھی بنا کسی روک ٹوک کے رہتے ہیں۔ میرے دیور کی عمر 40 سال ہے۔ وہ دکھنے میں ان کا پیٹ بہت ہلکا سا نکلا ہوا ہے۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ کسی کو بھی اپنی باتوں میں پھنسا لیتے ہیں۔ میں بھائی سلیم بولتی رہتی ہوں۔ یہ بات 1 سال پہلے کی ہے۔ بھائی سلیم کا طلاق ہو رہا تھا۔ اس کی وجہ دیور سلیم باہر لڑکیوں کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں، جس کا پتہ میری دیورانی کو چل گیا تھا۔ میری دیورانی دل کی بہت اچھی تھی۔ انہوں نے میرے دیور سلیم کو پہلے بھی کئی بار پکڑ کر مگر انہیں اپنے بچوں کی خاطر معاف کر دیا، مگر جب میرے دیور سلیم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو انہوں نے طلاق لے لی۔ میرے دیور سلیم پر اس بات کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ طلاق کے بعد میرے دیور نے مجھے اپنا نشانہ بنا لیا تھا۔ وہ ہر دن اور رات میرے ساتھ گزارتے تھے، مگر میں نے کبھی بھی نہیں سوچا میرے دیور میرے ساتھ ایسی حرکتیں بھی کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں، تاکہ مزید نیو آنے والی ویڈیو کی ہر نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ وہ ویسے ہی کرتے رہتے ہیں۔ ایک رات میرے شوہر کے پاس ایک کال آیا، میرے دیور سلیم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ میرے شوہر اور میں بہت زیادہ ڈر گئے۔ میرے شوہر جلدی سے ہسپتال گئے تو دیکھا میرے دیور سلیم کے ہاتھ اور پیر میں پٹی بندھی ہوئی تھی اور سر پر بھی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ 2 دن کے بعد میرے دیور سلیم کو ہوش آیا۔ یہ تو ہے کہ دیور سلیم کی آنکھیں بھی چلی گئی تھی، انہیں نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ میرے سلیم دیور یہ جانتے ہوئے رونے لگے۔ تب انہیں میرے شوہر جواد نے سنبھالا تھا۔ 1-2 ہفتے کے بعد دیور سلیم گھر آئے تو کچھ چھوٹے موٹے نشان اب بھی تھے۔ اب میرے دیور سلیم ہمارے ساتھ ہی رہنے لگے تھے۔ بھائی صاحب کا سارا ٹائم بس کمرے میں رہ کر گزارنے لگا تھا۔ وہ کمرے میں اکیلے رہتے تھے، ہم لوگ ہر وقت اسے سنبھالتے تھے۔ اب باہر آ کر ہمارے ساتھ بیٹھا کریں، لیکن وہ ہر وقت خاموش کمرے میں بیٹھا رہتا تھا۔ میرے شوہر جواد نہیں سمجھاتے تھے، مگر ان کی آنکھوں کی روشنی جانے کا درد اتنا گہرا تھا کہ ان کو سمجھانے میں کافی وقت لگا۔ کچھ دنوں کے بعد میرے دیور سلیم نے اللہ تعالیٰ کی مرضی مان کر خود کو سمجھا لیا۔ دیور سلیم کے ایکسیڈنٹ کا اثر میری زندگی پر اور زیادہ ہو گیا، جس کی وجہ یہ تھی کہ اب میرے شوہر جواد کو ان کے حصے کا کام بھی کرنا پڑتا تھا۔ ہم دونوں کو اپنے لیے بہت زیادہ وقت نہیں مل پاتا تھا۔ میرے دیور سلیم پر میری نظر تب پڑی جب ایک روز میں ان کے کپڑے دھو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں کپڑے دھو کر اٹھی اور بھائی صاحب کی روم میں گئی۔ وہاں ان کی چادر بدل رہی تھی تو اس پر بھی داغ لگے ہوئے تھے۔ میں جلدی سے چادر بدل کر واپس آ گئی۔ دوپہر کے ٹائم بچے سو رہے تھے اور میرے دیور سلیم اپنے کمرے میں تھے، اور میں نے ان کے دروازے کو کنڈی ہلکے سے گھما کر کھولا، اندر چلی گئی۔ اندر دیکھا تو میرے دیور سلیم سو رہے تھے۔
उस वक्त मेरे देवर ने बनियान और पजामा पहना हुआ था। मेरे देवर सलीम सो रहे थे। मैंने जो देखा उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे और मैं अपने कमरे में आकर सो गई। कुछ दिन तक मैं अपने देवर सलीम पर नज़र रखती रही। मैं अपने देवर सलीम को बुलाने गई। मैं चुपचाप उनके कमरे में गई। देवर सलीम रूम में नहीं थे। तब मैं उन्हें देखने वॉशरूम में गई। मेरे घर के सब कमरों में अटैच बाथरूम हैं। जैसे ही मैं अंदर झांक कर देखा जो उसे देखकर तो मैं और भी ज़्यादा हैरान रह गई। मैंने अपनी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था मेरे देवर सलीम ऐसी हरकत कर सकते हैं। भाई साहब को जैसे ही देखते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे देवर सलीम मेरे शौहर जवाद जैसे दिखते हैं। एक तो पल बाद मेरे देवर रूम में आए। मैं वहीं खड़ी रही। मेरे देवर सलीम को कुछ महसूस हुआ कि रूम में कोई है। उन्होंने मुझे आवाज़ दी, कोई है शाजिया? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तभी मेरे देवर ने मेरे बेटे को आवाज़ लगाई। मैं जल्दी दबे पांव कुर्सी के पीछे छुप गई। मेरा बेटा अंदर आया और अपने चाचा को बाहर ले गया। बाहर जाते हुए मैं ये सोच रही थी कि कैसे मैं मेरे देवर सलीम के आगे अपने जज्बात दिखा सकती हूँ। वो देख नहीं सकते हैं तो वो कैसे जानेंगे मैं क्या चाहती हूँ। जैसे ही मैं रूम से बाहर निकली तो दरवाजे पर बहुत तेज़ी से बंद हो गया। ये आवाज़ सुनकर मेरे देवर सलीम बोल पड़े, शाजिया क्या अभी तुम मेरे कमरे में थी? मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं बोलने लगी, वो भाई मैं अभी गई थी आपको देखने, मगर आप इधर आ गए हैं। मेरे देवर सलीम को देखने लगी। उनको देखने से साफ लग रहा था जैसे वो जान गए हैं। मैं भी इसी रूम में थी। फिर मैंने खाना खाया और अपने बेटी दुआ को दूध पिलाने लगी और बेटा अली अपने रूम में जाकर खेलने लगा। मेरे देवर सलीम बोले, शाजिया मुझे मेरे कमरे में छोड़ दो। मैं उनका हाथ पकड़कर रूम में लेकर गई। मैंने कहा, ठीक है भाई, अब आप आराम करो, कुछ चाहिए तो मुझे आवाज़ दे देना। मैंने गेट खोला और बंद कर दिया, मगर मैं बाहर नहीं गई। गेट बंद करने की आवाज़ से मेरे देवर को लगा मैं बाहर चली गई हूँ, मगर मैं अंदर थी। भाई सलीम ने अपनी शर्ट और पजामा बदल रहे थे। मेरा दिल कर रहा था कि मेरे देवर सलीम ने गर्दन घुमाई तो मैं वहीं खड़ी थी। मेरे देवर सलीम दरवाजे की तरफ मुँह करके मुस्कुरा रहे थे। मुझे लगा देवर सलीम को पता चल गया है कि मैं कमरे में हूँ। मैं बिना कुछ बोले जल्दी से उनके कमरे से बाहर निकल कर गई। अगली सुबह एक नया ही नज़ारा मेरा इंतज़ार कर रहा था। हर सुबह मेरे देवर सलीम जल्दी उठ जाते हैं, मगर आज वो सो रहे थे। इतने महीनों में जब से मेरे देवर सलीम रह रहे हैं, पहली बार हुआ है कि मेरी नज़र उनसे हट नहीं रही थी। तभी मैंने भाई साहब को हिलाकर जगाया। वो मेरे देवर सलीम ने उठते ही मुझे गौर से देखा। ऐसा करते हुए उनका चेहरा ऐसे ही था जैसे मुझे देख रहे हैं। मैं वहाँ से चली गई। मेरे मन में वही नज़ारा घूम रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था उन्होंने पहली बार ऐसा कुछ किया था। वो कुछ देर के बाद मुझे उसका जवाब मिल गया। मेरे शौहर जवाद जब उन्हें नाश्ता के लिए लेने गए तो उन्होंने मना कर दिया। पूछने पर बोले, मैं बाद में करूँगा। शौहर जवाद के जाने के बाद मैं कमरे में काम करने लगी। तभी मेरे देवर सलीम की आवाज़ आई, मेरे कपड़े निकाल दो। मैं जल्दी से मेरे देवर सलीम के कमरे में गई तो मेरे देवर सलीम ने कपड़े निकाल दिए और देवर सलीम मेरी आहट पाकर बोले, शाजिया बाथरूम में छोड़ दो और मेरे कपड़े भी वहीं टांग देना। मैंने कपड़े एक हाथ में पकड़े और दूसरे हाथ में देवर सलीम का हाथ पकड़कर उन्हें बाथरूम में लेकर गई। उन्हें मैंने शावर के नीचे खड़ा कर दिया। भाई साहब ने शावर चला दिया और नहाने लगे। उन्होंने मेरे जाने का इंतज़ार भी नहीं किया। उनका मुंह दरवाजे की तरफ था जहां मैं खड़ी थी। वो देख नहीं सकते थे, मगर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ कह रहे हों। उन्होंने ऐसा कहते ही देखकर मैं वहां से निकल गई।
नहाने के बाद मेरे देवर सलीम ने नाश्ता किया, फिर अपने काम में लग गई। दोपहर का खाना खाने के बाद बच्चे सो गए थे और सब जगह देवर सलीम दिखाई दे रहे थे। मेरा दिल कह रहा था कि मेरे देवर सलीम को पता चल गया है। मैं उन्हें हर रोज़ देखती हूँ। तो दूसरी तरफ मेरा मन कर रहा था, नहीं, ये मेरा वहम हो सकता है। मेरे कमरे में मेरे देवर सलीम को मेरे होने का एहसास था, मगर वो कुछ नहीं कहते थे और ना ही कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। हम दोनों रोज़ ऐसा करते थे। इंसान कितना भी खुश रह ले, मगर उसकी ऐसे बोलने के लिए मजबूर कर देती है। एक दिन वही हुआ। मैं हर रोज़ की तरह दोपहर में मेरे सलीम के कमरे में गई। मैं जैसे ही उनके कमरे से जाने लगी तो मेरे देवर की आवाज़ आई, शाज़िया। उनके मुंह से अपना नाम सुनकर वहीं खड़ी हो गई। मेरे देवर सलीम बोले, शाज़िया, मैं जानता हूँ तुम यहीं हो। मुझे पहले दिन ही पता चल गया था, मगर मुझे लगा ये मेरा वहम है। फिर उस दिन दरवाजे की आवाज़ से मुझे पक्का हो गया तुम यहीं थी। मैं अंधा हूँ, बहरा नहीं शाज़िया, मैं देख नहीं सकता, इसीलिए तुम ऐसी हरकतें कर सकती हो। मैंने कभी भी नहीं सोचा था तुम इस तरह की हरकतें करोगी। तुम्हारी भी कोई मजबूरी है, इसीलिए तुम यहाँ हो। शाज़िया, क्या हम दोनों में? मेरे देवर सलीम की बातें सुन रही थी, मगर कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। भाई सलीम बोले, शाज़िया, ये बात हमारे बीच में रहेगी। अब ये सारे फैसले तुम पर हैं। अगर तुम नहीं होगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऐसे ही भी खुश हूँ। तुम्हारे पास होना मेरे लिए बहुत है। मेरे देवर सलीम की ऐसी बातें सुनकर वहाँ से चली गई, मगर देवर सलीम का एक कहा एक बात मेरे कानों में गूंज रही थी। इस हादसे के बाद मैंने कभी भी अपने शौहर जवाद को धोखा नहीं दिया। मैं फैसला नहीं कर पा रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि आखिर में इसका अंजाम ना जाने क्या होगा। इसीलिए मैं चुपचाप अपने शौहर के साथ हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। तो मैं अभी कभी भी अपने देवर के बारे में नहीं सोचती हूँ, क्योंकि मैं अपने शौहर और बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हमें ज़िंदगी में हमेशा अपने शौहर और बच्चों के साथ खुश रहना चाहिए, क्योंकि दिमाग में ऐसी हरकतें आती हैं, इसीलिए आखिर में अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा होता है। तो मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबाएं। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ ही जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़। आपका इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना।